Hello everyone. So in the last class, what we have seen in the last lecture, we did the relation between crystal lattice axis and crystal reciprocal lattice axis. And then we saw that the volume of unit cell of reciprocal lattice is basically inversely proportional to the volume of the unit cell of the direct lattice, and the proportionality constant is 8 pi cube. Then we saw that the reciprocal of a reciprocal lattice is itself a direct lattice. Now, what we'll do today, we'll prove that the reciprocal lattice of simple cubic lattice is also simple cubic. That means simple cubic lattice is self-reciprocal. जब हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी रेसिप्रोकल लैटिस की, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें हमने एक लाइन लिखी थी दैट सिंपल क्यूबिक लैटिस इज सेल्फ रेसिप्रोकल while BCC and FCC lattices are reciprocal to each other. So this is what we have to prove today. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है, जब हम उसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालते हैं तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक आता है या नहीं. And these things, they are very very important from your examinations point of view. 4.10, 4.11 and 4.12. It often comes in the exam. Now, before starting with the reciprocal lattice of simple cubic lattice, first we should know the primitive translational vectors of a simple cubic lattice. Now, primitive translational vectors का मतलब क्या है? जो हमारा unit cell होगा, that should be primitive. That means all the atoms, they should be present at the corners. इसका जो simple cubic lattice है, उसका unit cell क्या होगा? ऐसा होगा. सिंपल क्यूबिक है, दैट मीन्स ऑल द साइड्स विल बी इक्वल. सिंपल क्यूबिक है, इसका मतलब जो क्रिस्टल एक्सिस है, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. स्मॉल a इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल b, परपेंडिकुलर टू स्मॉल c. नाउ जो लेंथ है along x, y and z axis, that is equal. Let it be small a. Why equal? Since the unit cell is nothing but a cube. And this unit cell is a primitive unit cell since all the atoms, they are present at the corners only. So we have three primitive translational vectors: small a vector, small b vector and small c vector. Now what will be small a vector? Small a vector is along x-axis, small b vector is along y-axis and small c vector is along z-axis. ठीक है? Now what will be ए वेक्टर? ए वेक्टर क्या होगा हमारा? ए आई कैप. वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? लेंथ इनटू डायरेक्शन. तो वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन जो है आई कैप है. सिमिलरली बी वेक्टर जो है, इसके अलोंग भी लेंथ जो है वो ए है और डायरेक्शन जो है वो जे कैप है. सिमिलरली जो सी वेक्टर है हमारा, उसकी लेंथ भी ए है, विच इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब. ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो के कैप है. नाउ वी नो द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ अ सिंपल क्यूबिक डायरेक्ट लैटिस. नाउ इसका वॉल्यूम क्या होगा? वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. द फॉर्मूला इज ए डॉट बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी को हम अगर ब्रैकेट में ले लें, नाउ सब्स्टिट्यूट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप डॉट विद B vector which is AJ cap cross with C vector which is AK cap. Now AA जो है magnitude है, it will come outside, so this will become A cube. और हमारे पास यहाँ पे क्या रहा? I dot J cross K. Now ये सबको पता है J cross K क्या होता है? That is equal to I cap. ठीक है, J cross K is I cap, so I dot I will be 1. So the volume of the unit cell is A cube. और ये हमको ऑलरेडी पता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम A क्यूब होता है. और सबको पता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज A क्यूब ओनली सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल. Now we know the primitive translational vectors of simple cubic lattice. We know the volume of the unit cell.
Now it is very easy for us to find the primitive translational vectors of the reciprocal lattice. We can use the formulas given in equation 4.5, that capital A vector, capital B and capital C. These are the primitive translational vectors of the reciprocal lattice. And we know capital A vector is nothing but by definition 2 pi into B cross C divided by A dot B cross C. इसमें ना ब्रैकेट्स भी लगाया करो एग्जाम में, इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे. सो ए वेक्टर इज 2 पाई इनटू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी. नाउ व्हाट इज बी? ए जे कैप. व्हाट इज सी? ए के कैप. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. तो इट विल बिकम 2 पाई इनटू ए स्क्वायर जे क्रॉस के, एंड जे क्रॉस के इज नथिंग बट आई कैप. और जो डिनोमिनेटर है दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल व्हिच इज ए क्यूब. तो हमारे पास क्या आ गया? 2 pi a square upon a cube into I cap. A square से a square cancel out होगा, so we get a vector is equal to 2 pi upon a I cap. इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो साथ के साथ जो है अपनी बुक में, अपनी या किसी भी अपनी नोटबुक में इसको लिखते जाओगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. बट इतना पता होना चाहिए that j cross k is I, k cross I is j, I cross j is k. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव कैपिटल बी वेक्टर. जैसे कैपिटल ए हमारा 2 पाई अपॉन स्मॉल ए आई कैप आया, सिमिलरली कैपिटल बी वेक्टर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम 2 पाई इंटू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी. तो दिस विल गिव कैपिटल बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए जे कैप. इसको तुम खुद से एक बार कैलकुलेट करके भी देख सकते हो. एग्जाम में बस एक दिखाना, बाकी दो के लिए यू कैन राइट सिमिलरली. नेक्स्ट कैपिटल सी वेक्टर क्या होता है? बाय डेफिनेशन कैपिटल सी वेक्टर इज 2 पाई इंटू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी. तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई अपॉन ए इंटू के कैप. तो अब यहाँ पर देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये हमारे प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं रेसिप्रोकल लैटिस के. अगर हम इन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि कैपिटल ए इज परपेंडिकुलर टू कैपिटल बी, परपेंडिकुलर टू कैपिटल सी. क्योंकि कैपिटल ए की डायरेक्शन आई कैप है, कैपिटल बी की डायरेक्शन जे कैप है, कैपिटल सी की डायरेक्शन के कैप है. दैट मींस दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. तो ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम में लाई करेगा? देखो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. नेक्स्ट जो इसका मैग्नीट्यूड है वो देखो, तीनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 2 पाई अपॉन ए है. इसका मतलब लेंथ जो है वो इक्वल है और जो डायरेक्शंस हैं तीनों की वो परपेंडिकुलर है. तो ये कौन सा लैटिस हुआ? दिस इज नथिंग बट अ सिंपल क्यूबिक lattice. So reciprocal lattice to a simple cubic lattice is itself a simple cubic lattice. क्या डिफरेंस आएगा? बस डायरेक्ट लैटिस में लैटिस कांस्टेंट अगर स्मॉल a था, रेसिप्रोकल लैटिस में लैटिस कांस्टेंट जो है 2 पाई अपॉन a हो जाएगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस. रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो कैसा दिखेगा हमारा? इसी तरीके से सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएंगे हम. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, 3 एक्सिस है x y z. x वेक्टर के अलोंग कैपिटल A वेक्टर है, y के अलोंग कैपिटल B, z के अलोंग कैपिटल C, और तीनों की जो मैग्नीट्यूड्स है वो 2 पाई अपॉन A है. रेसिप्रोकल लैटिस में जो हमारा क्यूब आया इन सबकी लेंथ इक्वल है. अब इंस्टेड ऑफ स्मॉल a इसकी लेंथ जो है 2 पाई अपॉन A हो गई, बट इट इज स्टिल अ सिंपल क्यूबिक लैटिस. तो यहां से हमने प्रूव कर दिया दैट अ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज सेल्फ रेसिप्रोकल. जब हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारे पास अगेन सिंपल क्यूबिक लैटिस ही आएगा. ठीक है, तो सिंपल प्रूफ है इसका बट इम्पोर्टेंट है. तो इसी तरीके से हम बीसीसी और एफसीसी करेंगे. पहले हम उनके प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट सेल का, फिर हम प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर्स निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बाय इक्वेशन 4.5 जैसे हमने यहाँ किया. ठीक है, पहले बीसीसी करने की बजाय हम पहले एफसीसी करेंगे. वो थोड़ा सा ज्यादा इजी है तो थोड़ा समझने में आसानी होगी. पहले हम एफसीसी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बीसीसी करेंगे. देखो बीसीसी के जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है वो ये होते हैं. ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लो. एफसीसी में
जब हम उसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो वहां पे इसको देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दीज आर द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ द बीसीसी लैटिस। नाउ अब हम शुरू कर रहे हैं एफसीसी लैटिस। नाउ एफसीसी लैटिस क्या होता है, जिसके यूनिट सेल में सारे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 8 एटम्स कॉर्नर्स पे है और 6 एटम्स जो है वो फेस सेंटर पे है। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो वी हैव 8 atoms at the corners and 6 atoms at the face centers. इस तरीके से होता है हमारा एफसीसी लैटिस। Now, अब इसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा टू फाइंड द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ द एफसीसी लैटिस। ना प्रिमिटिव का मतलब क्या है, प्रिमिटिव का मतलब है कि ये जो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं ये उस यूनिट सेल के हैं जिसके सारे एटम्स जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अगर हम ये बिगर वाला यूनिट सेल देखें, इसमें सारे एटम्स कॉर्नर्स पे नहीं है, 8 एटम्स कॉर्नर पे है, 6 फेस सेंटर पे है। तो ये जो अंदर यूनिट सेल बनाया है, दिस इज बेसिकली द प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें देखो जो सारे एटम्स हैं हमारे वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। सो दिस इज द मोर कन्वेंशनल वे ऑफ ड्राइंग द एफसीसी यूनिट सेल। ना ये जो बीच वाला जो हमारा क्यूब दिखा रहा है, this is basically enclosing the primitive unit cell of the FCC structure. Primitive cell जो होता है, it is based on the primitive translational vectors. Let's say इसके जो primitive translational vectors हैं, they are A prime, B prime and C prime. So A prime, B prime, C prime, these are the primitive translational vectors of this primitive cell, which is basically connecting the lattice point at the origin with the lattice points at the face centers. जो primitive translational vectors है किसको connect कर रहे हैं? They are connecting the lattice point at the origin. That means this point, which is at the origin. So these primitive translational vectors are connecting the lattice point at the origin with the lattice points at the face centers. जैसे एक यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है और एक हमारा यहाँ पर है. So this is the primitive cell of the FCC lattice where all the atoms are present at the corners. ठीक है, ये जो 4 atoms हैं, ये this one, this one, this one, this one, ये 4 जो है फेस सेंटर्ड हो गए, एक ये फेस सेंटर्ड है और एक ये. तो हमारे पास टोटल ये 6 फेस सेंटर्ड एटम्स हो गए, 2 जो है हमारे कॉर्नर एटम्स है. ठीक है, तो ये मिलाकर हमारा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बना रहे हैं जिसमें A प्राइम वेक्टर जो है, दिस इज द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑन द XY प्लेन. B प्राइम जो है, दिस इज द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑन द YZ प्लेन. C प्राइम हमारा हो गया प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑन द XZ प्लेन. ठीक है, अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? देखो, तो हमारा ये फेस सेंटर्ड एटम है, ठीक है, ये XY प्लेन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट अलोंग X एक्सिस क्या होंगे? a/2. अलोंग Y एक्सिस क्या होंगे? a/2. तो वेक्टर फॉर्म में हम A प्राइम वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? a/2 I कैप प्लस a/2 J कैप. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जब मैंने पहले FCC और BCC पढ़ाया था तो मैंने हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे. जो XY प्लेन के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है या लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? XY प्लेन पे है तो इसके सेंटर पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a/2. ठीक है, a/2 एंड 0. ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है a/2 एंड 0. तो A प्राइम वेक्टर को वी कैन राइट एज a/2 I plus a/2 J cap. If we take a/2 common, it will become I cap plus J cap. Similarly, B prime vector को we can write as a/2 into J cap plus K cap. That means we are talking about the YZ plane. Central atom at the YZ plane. नेक्स्ट C प्राइम हमारा हो गया a/2 इंटू K कैप प्लस I कैप. दैट मीन्स हम उस फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट या एटम की बात कर रहे हैं जो हमारा XZ प्लेन पे प्रेजेंट है.
अब हमें एफसीसी लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स मिल गए। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। Now next what we have to find is the volume of this primitive cell. वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, a डॉट b क्रॉस c होता है, यहाँ पर होगा a प्राइम डॉट b प्राइम क्रॉस c प्राइम. Now substitute the values of a prime, b prime and c prime in this expression. What you will get? a by 2, a by 2, a by 2 तीनों का कॉमन आ गया, so it will become a cube upon 8. ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहा? सबसे पहले a prime which is I cap plus j cap dot product with b prime which is j cap plus k cap cross product with c prime which is k cap plus I cap. ये इसको करेक्ट कर लो, क्रॉस नहीं आएगा प्लस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, j कैप प्लस k कैप क्रॉस k कैप प्लस I कैप क्या होगा? देखो सबसे पहले आएगा j क्रॉस k, j क्रॉस k क्या होता है हमारा I कैप। नेक्स्ट हमारा आया j क्रॉस I, j क्रॉस I क्या होता है हमारा माइनस k कैप, ठीक है। अगर ये मेरा I है, सॉरी ये j है, ये k है, ये सबने पढ़ रखा है साइक्लिक और एंटी साइक्लिक रोटेशन या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है वो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में अगर आते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है वो नेगेटिव है। तो I क्रॉस k जो है हमारा, वन सेकेंड, j क्रॉस k, तो j क्रॉस k हमारा I कैप होगा और हमारा j क्रॉस I माइनस k कैप होगा। ये सबको पता है, सबने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा है वेक्टर्स में। नाउ नेक्स्ट k क्रॉस k 0 होगा, k क्रॉस I हमारा क्या होगा? j कैप। तो हमारा यहाँ आ गया j कैप। तो हमारे पास आया I कैप माइनस k कैप प्लस j कैप। आई होप ये सबको क्लियर है कैसे आया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा I कैप प्लस j कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देखो I डॉट I हमारा 1 हो गया, I डॉट माइनस के 0 होगा क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, I डॉट j भी 0 होगा, j डॉट I भी 0 होगा, j डॉट माइनस के भी 0 होगा, j डॉट j 1 होगा। तो हमारे पास दो चीजें 1 है, I डॉट I एंड j डॉट j. So we get a cube upon 8 ब्रैकेट में 1 plus 1, so it will become a cube upon 4. So the volume of the primitive unit cell of the FCC lattice is a cube upon 4. Now what we know the primitive translational vectors of the FCC lattice. We know the volume of the primitive cell of the FCC lattice. Now what we have to find? We have to find the primitive translational vectors of the reciprocal lattice of FCC lattice. That means capital A, capital B and capital C. तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज स्मॉल a प्राइम, b प्राइम और c प्राइम की। कैपिटल A हमारा क्या होगा? 2 पाई इंटू b प्राइम क्रॉस c प्राइम डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c. a डॉट b क्रॉस c is nothing but the volume which came out to be a cube upon 4. So substitute here. तो a वेक्टर हो गया 2 पाई अपॉन a cube upon 4 and bracket में we have b prime cross c prime. b prime is a by 2 into j cap plus k cap which is cross product with c prime which is a by 2 into k cap plus I cap. अब जितने भी constants हैं take them out of these brackets. तो ये हमारा क्या आ गया? 2 pi upon a, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, न्यूमिनेटर में a क्यूब है तो a स्क्वायर कैंसल आउट होगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास a रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1/4 है, 1/2 into 1/2 is also 1/4, so 1/4 will also cancel out and we'll get 2 pi upon a. और हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया? j प्लस k क्रॉस विद k प्लस i, जो हमारा ये है j प्लस k क्रॉस विद k प्लस i। ये ऑलरेडी मैंने बताया था I कैप माइनस k कैप प्लस j कैप आता है। तो सब्स्टिट्यूट हियर, this can be written as capital A vector is 2 pi upon a in brackets I cap plus j cap minus k cap. Similarly, you can find capital B and capital C also. One second. Now, हमने कैपिटल A निकाल लिया which came out to be 2 pi upon a into I cap plus j cap minus k cap.
सिमिलरली कैपिटल बी हमारा आएगा 2 पाई अपॉन ए इन ब्रैकेट्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको खुद से सॉल्व करके देखना चाहते हो तो सॉल्व भी करके देख सकते हो, बाकी एग्जाम में सिर्फ एक निकाल के बाकी दो के लिए सिमिलरली करके लिख सकते हो। कैपिटल सी वेक्टर हमारे पास क्या आया, 2 पाई अपॉन ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ना। ये हमारे कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है, दीज आर द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द एफसीसी लैटिस। अब देखो ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स मैंने बीसीसी के दिखाए थे ना, देखो इसी तरीके से आ रहे हैं ना ये रेसिप्रोकल लैटिस के भी। इसका मतलब एफसीसी लैटिस का जब हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस है दैट इज नथिंग बट बीसीसी। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है रेसिप्रोकल लैटिस की कि एफसीसी एंड बीसीसी लैटिसेस जो हैं दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी होगा, बीसीसी का रेसिप्रोकल एफसीसी होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एफसीसी लैटिस का जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमारे पास जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है वो बीसीसी लैटिस के आ रहे हैं। दैट मींस बीसीसी लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द एफसीसी लैटिस। What will be its reciprocal lattice vector capital G? Capital G is by definition HA vector plus KB vector plus LC vector, where H, K and L are integers. Now substitute the values of capital A, capital B and capital C. तो 2 पाई अपॉन ए हमारा कॉमन आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई कैप कॉमन ले लो, देन जे कैप कॉमन ले लो, देन के कैप कॉमन ले लो, तो हमारे पास इस तरीके की एक्सप्रेशन आती है। ठीक है, आई कैप के साथ हमारा क्या आएगा, h माइनस के प्लस एल, जे कैप के साथ आएगा h प्लस के माइनस एल और के कैप के साथ आएगा माइनस h प्लस के प्लस एल। ये कैसे निकला हमारा, H यहाँ कैपिटल ए के साथ मल्टीप्लाइड है, K कैपिटल B के साथ, L कैपिटल C के साथ, फिर हमने यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और I कैप J कैप K कैप कॉमन ले लिया, तो वील गेट दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी लैटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस और उसमें हम देखेंगे जो बीसीसी लैटिस है उसका रेसिप्रोकल क्या आता है हमारा, उसका रेसिप्रोकल आता है एफसीसी लैटिस। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे सबसे अच्छी बात क्या है कि इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इजी भी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिखो पहले सिंपल क्यूबिक एफसीसी और बीसीसी के, फिर वॉल्यूम निकाल लो यूनिट सेल का, फिर सिंपली कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी के फॉर्मूले में वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दो और तुम्हारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास प्रिमिटिव रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स आ गए तो उसकी हेल्प से हम कैपिटल जी को भी निकाल सकते हैं, विच इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एच कैपिटल ए वेक्टर प्लस के कैपिटल बी वेक्टर प्लस एल कैपिटल सी वेक्टर, where h, k and l are integers. Okay, so in the next class we will start with the reciprocal lattice of BCC, this one.